Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now this is visible, clinical chest radiology. Yes, sir. Okay, fine. So today we are doing the clinical chest radiology. It consists of 8 sessions of 1 hour. It is a total of 18 hours minus किए हैं इसमें से about 8 to 10 hours I have minus इसको कर दिए हैं लेकिन a few attend all sessions. Some sessions are interactive and some are recorded to save time. So this is the first session which we are going to discuss. Now, chest X-ray PUV is one of the routine ordered, your routine investigation which we ordered. The other routine investigations are blood CBC, the random blood sugar must be checked out, and the chest X-ray PA view. ये रूटीन एग्जामिनेशन है वेदर आपका एलोपेसिया हो या आर्थरालजिया हो whatever you are. You have to do the random blood sugar, you have to go to CBC, you have to go for urine RE, and then there are 4 types. The investigation one is X-ray chest PA view. Now all are the physicians are dependent on the radiologist's report. This is clinical, means that you have seen that patient, you advise him X-ray, and he has brought this X-ray to you without any report, and you have to read it. It is challenging for the person. No? What are the parameters to look for? That is the importance of the X-ray chest skygram. Skygram means plain X-ray chest. There are other type of X-ray as well. Other than that, you know that about it. With the contrast, you can do the radiology, you can do the MRI, you can do for the CT scanning, you can do the positron emission tomography, you can do the SPECT, single photon emission CT, and you can do the HRCT, highly resolution CT scan. It's possible these are the other types of the radiological procedures, and these are all are non-invasive. Invasive भी होते हैं इसमें से. They are all non-invasive. The other invasive procedure can be done. Angiography is a part of radiology actually, or angiography of the cerebral, that is angiography, that is we call MRA, the magnetic resonance angiogram of the brain, or MRA of the kidneys, or MRA of the abdomen, etc., etc. Now, important thing is this is the cheapest one, plain X-ray chest. Nowadays, 700 rupees they are doing in most of the private hospitals. The film costs 100 rupees or 150 rupees only. So 150 rupees in government settings, you can do this plain X-ray chest, no problem. But X-ray chest it will give more information. High yield रहता है ये बहुत. Most of the diseases can be picked on this. Total अगर लगाने पूरी बॉडी के अंदर तकरीबन 40% yield होता है इसका. 40% ये आपको बता देगा. There is something going wrong. बाकी जो है वो CBC आपके पास मौजूद था, वो आपको करेगा, इंडिकेट करेगा. अभी आपने कहा कि RBS है, वो अंदाज़ा लगा देगा कि ज़ाहिर है कि डायबिटिक है पेशेंट, ये नहीं है दिस टाइम. यूरिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है. अगर 4 चीज़ें आपके पास हैं एट द टाइम, यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस पेशेंट, और यू कैन प्रोग्राम द पेशेंट for the future events. So
You know, densities for the plain X-ray chest are important. Some are looking white, they are bones, and air here it will be visible as black. The dark grey fat, this one, soft tissues, or soft tissue grey or dark grey, whatever it is, and it is bright white is artifact. Here is artifact, man-made artifact. These are the densities actually. ये जो है ना जहन में से ऊपर लिखा हुआ है, देखें इसमें ये लेड की है, बेरियम की है, सारा साइट में लिखा हुआ। फैट की बिल्कुल इस तरह की, और ब्राइट अगर हो जाएगी इस तरह तो नहीं होती कोई भी चीज़ इतनी ब्राइट। तो ये तो ज़ाहिर है कि उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मॉनिटर लगाया हुआ है इसमें। ये देखें आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये अंदर डाला हुआ है, ये बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ से बैटरी है, ये लिथियम जो उन्होंने पुट की है यहाँ पे, और यहाँ से ये इसे सर्कल कर दिया, यहाँ तक आ गया। एक इसका पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इसका यहाँ पे। तो ये इस तरह से पता लगाते हैं ना, जब कर लेते हैं तो बाद में देखते हैं पोजीशन इसकी देखने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्स-रे चेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेन जो है ना एक्स-रे चेस्ट स्टिल इज़ पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो तो है उनके पास, तो ऑन हैंड एको होता है उनका, हैंड ऑन हैंड वो कर लेते हैं, सीटी भी कर लेते हैं। तो उनको इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते, ये ख्याल कीजिए। आपको यू हैव टू डू द प्लेन एक्सरे और प्लेन बोन बिफोर यू प्रोसीड। इससे पहले आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो प्लेन एक्सरे जो है ना, चेस्ट को क्यों रखा हुआ है इन्होंने? एक्सरे चेस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप देखेंगे तो तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक ऑब्जेक्ट है, एक सोर्स है, फिल्म है। फिल्म जो है ना जिसके पास लगाई जाएगी वो चीज़ वाज़ेह होगी, जिसके करीब तरीन चीज़ जो फिल्म होगी वो पकड़ लेगी उसको। मिसाल को लंबोसैक्रल एरिया में आप फिल्म लगाएंगे तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि आप सोर्स इस्तेमाल करेंगे। आपके पास सोर्स होनी चाहिए, यानी एक्सरे की सोर्स है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट वो है जिसको आप निशाना बना रहे हैं। तो एक तरफ जो होगी सोर्स होगी, जो बिल्कुल अपोजिट होगी फिल्म के, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सोर्स है, फिल्म। तो इस तरह करेंगे, सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड फिल्म। तो अगर आप ये तीन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। फिल्म के नियरेस्ट पॉसिबल जो भी ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन करें, आप कुछ भी करें, आप एपी व्यू करते हैं, आप एब्डोमेन में देखो पीए व्यू नहीं करते, इसमें एपी व्यू करते हैं। इसी तरह से आप लंबोसैक्रल स्पाइन का एपी लेटर व्यू करते हैं, पीए व्यू नहीं करते, बिकॉज यू हैव टू पुट द फिल्म ऑन द स्पाइन, तब वो आपको नज़र आएगी। अगर आप उल्टा लगा दें, एब्डोमेन पे लगाएंगे तो उसमें तो वो डिम हो जाएगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। एज नियर द फिल्म टू द ऑब्जेक्ट, जितने करीब होगी जो टारगेट है जो भी आपका, उतना वाज़ेह हो जाएगा वो। दिस इज द रूल ऑफ द प्लेन रेडियोलॉजी। एज अ फिजिशियन मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे क्या देखना होता है, फिजिशियन को देखना होता है लंग फील्ड देखनी होती है बेसिकली, उसको जो चीज़ें देखनी है जो, और दूसरा जो है ना उसे हार्ट एंड कवरिंग्स देखनी होती है। दो चीज़ें वो देखना चाहता है। और लंग ज़्यादातर प्रोट्रूड होता है एंटीरियरली, और मिडिल स्टिनियम होता है, एक होता है सुपीरियर मिडिस्टिनम, एक होता है इन्फीरियर मिडिस्टिनम। तो इंफीरियर जो मिडिस्टिनम वो तीन में डिवाइड होता है, मिडिल मिडिस्टिनम होता है, फिर एंटीरियर मिडिस्टिनम, उसके आगे होता है पीछे पोस्टीरियर मिडिस्टिनम होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पोस्टीरियर मिडिस्टिनम, वी आर इंटरेस्टेड इन द मिडिल मिडिस्टिनम और एंटीरियर मिडिस्टिनम, कि वहाँ सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर फिल्म को आप लगाते हैं चेस्ट वॉल पे, यानी इसलिए आपको चेस्ट वॉल पे लगानी पड़ेगी, तब वो जाके हार्ट के पास जाएगी, प्रिकॉर्डियम के पास होगी, लंग भी सामने आएंगे, और सोर्स को रखें पीछे, ऑब्जेक्ट हो गया दरमियान में इंसान। तो ये व्यू का नाम रखा उन्होंने पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, पीए व्यू। पीए व्यू क्यों? क्योंकि सोर्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं
वो पोस्टीरियरली कर रहे हैं, और फिल्म को जो आप लगा रहे हैं वो एंटीरियर लगा रहे हैं। कि सोर्स जो होती है वो बादशाह है, स्काईग्राम है, जहाँ से एक्सरे रेडिएशन हो रही है, पढ़ा जाएगा ये PA व्यू। इसका मायने ये होते हैं कि सोर्स जो है पीछे रखी गई है, फिल्म को आगे रखा गया है, और ऑब्जेक्ट को दरमियान में रखा गया है। और आपने एंटीरियरली क्यों लगाई है? क्योंकि आप मिडिल मेडिस्टिनम को देखना चाहते हैं, लंग्स को देखना चाहते हैं। अब इसको उल्टा कर दें, अगर आप फिल्म को आप पीछे लगाएं और सोर्स को आगे कर दें, तो आप पोस्टीरियर मेडिस्टिनम को देखना चाहते हैं या थोरेसिक स्पाइन को देखना चाहते हैं? वो हम नहीं देखना चाहते, वो तो सर्जन देखना चाहता है, वो उसका काम है। तो फिजिशियन का जो व्यू होता है वो PA व्यू होता है। PA व्यू अगर नहीं है तो उसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इस जो है ना चीज़ को समझ लें कि फिल्म के पास जो भी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा वाज़ेह होंगे, जो उसके से दूर होंगे वो डिम हो जाएंगे। तो वी वांट PA व्यू, नॉट AP व्यू। ये जैसे कि बहुत सारे व्यूज उन्होंने बताए हैं। PA व्यू ज़्यादा आपको इसको खड़ा करना पड़ता है, आदमी को उससे सीने से चिमटाना पड़ती है फिल्म को। बकी व्यू, घोड़े पे सवार होता है बकी, वो चिमट जाता है उसकी गर्दन से, हॉर्स, इसको बकी व्यू। AP व्यू जो होता है वो ज़्यादातर जो कराते हैं वो सुपाइन होता है, पेशेंट एडमिटेड होता है, उसको उल्टा नहीं कर सकते, तो फिल्म को मजबूरन पीछे ले जाना पड़ता है। पोस्टीरियर AP है, तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएंगी। AP व्यू इरेक्ट भी करते हैं, ये करते हैं सर्जन्स ज़्यादातर। लेटरल इरेक्ट भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। राइट लेटरल हो सकता है, लेफ्ट लेटरल हो सकता है। फिर लिटा कर लेटरल डेक्यूबिटिस का मतलब करवट दिला, आपने करवट दिला दें एक साइड पर, और फिर एक्सरे करें, इसको कहते हैं डेक्यूबिटिस। आजकल नहीं करते इसको, बिकॉज CT आपके पास होता है, तो CT की वजह से डेक्यूबिटिस नहीं करते। ये प्लूरल एफ्यूजन के लिए करते थे कि उसका वॉल्यूम कम हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्लिक व्यू जो करते थे एक ज़माने में, जब तक CT नहीं था, तो ऑब्लिक व्यू जो था वो ऑब्लिक एंगल पे, यानी एक्सरा में फिल्म को लगाते थे और बीम को पास करते थे ऑब्लिक। उससे क्या होता था, हाइलर एरिया क्लियर हो जाता था। अगर हाइलर शेडो देखना है या पेरी हाइलर शेडो देखना है तो ऑब्लिक व्यू कराते हैं। और ये सारे व्यू जितने भी हैं जो आपको सामने लिखे गए, इनमें से ये तो बाकी रह गया। ये आपके पास है ICU में, आप पेशेंट एडमिट करते हैं, HDU में तो ये करना पड़ता है मजबूरन, ये मजबूरी का एक्सरे है। या एम्बुलेंस में कभी करते हैं इसको, या घर पे आप बुलवा के करवाते हैं, ठीक है ना, एम्बुलेटरी जिसे कहते हैं। और AP व्यू इरेक्ट जो है वो प्लान व्यू होता है, सर्जन का ज़्यादातर होता है, जो स्पाइन देखने के लिए कर रहा है या पोस्टीरियर मेडिस्टिनम के लिए कर रहा है। लेटरल इरेक्ट देखने का मकसद ये होता है कि कोई आपको इसमें कुछ नजर आया पैथोलॉजी, तो ये देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली है कहाँ, लोकेशन उसको करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए वो करते हैं, लेटरल करते हैं इरेक्ट। अब या तो राइट हो सकता है, राइट लंग था तो राइट में, तो लेफ्ट लंग में था तो लेफ्ट इरेक्ट भी हो जाएगा, लेटरल इरेक्ट। ये जो है ना बुनियादी चीज़ है, these are the fundamentals to understand। दूसरी फंडामेंटल ये याद रखेंगे, इसको जो है ना वेव थ्योरी और रेडिएशन पर नहीं पढ़ते एक्सरे के। आपने पढ़ी थी इंटर में क्वांटम थ्योरी, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या से अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्सरे जो है ना उसको लें बीम एज अ फोटॉन, एक्सरे बीम को फोटॉन के तौर पर लें, वो बॉडी के अंदर पास हो जाती है थ्रू। जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो आपको वाज़ेह हो जाएगा, जो एब्जॉर्ब नहीं करता है पूरा का पूरा निकल जाता है बाहर, तो वो बिल्कुल जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा सा पीछे फेंक देगा तो वो ग्रे हो जाएगा। और बिल्कुल ही अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करता, करते ही नहीं है, तो वो जो होता है वो क्या होगा, बोन होगी, या फिर कोई और चीज़ है जैसे फॉरेन बॉडी है या आर्टिफैक्ट है कोई, तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा वो, तो वो क्या करेगा, फेंक देगा पीछे, तो चारों तरफ से उसके किनारे नज़र आने लगेंगे। तो अगर आप उसको उस तरह पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी से, तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है क्वांटम वाली, तो उससे ये ज़्यादा वाज़ेह होता है। अच्छा, ये जो मेरा व्यू है ये मैंने आपको प्रेजेंट किया था, ये मेरा अपना व्यू था। अगर आप इसको इस तरह पढ़ें और अगर आप उस तरह पढ़ेंगे वेव थ्योरी पर, तो ये समझ में नहीं आएगा।
ये क्यों नज़र आ रहा है, तो ये क्यों नज़र नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। उसका जवाब क्वांटम थ्योरी दे रही है। एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या थ्रू पास हो जाए, तो वो तो बहुत सारी हैं, अल्फा रेज हैं, गामा रेज हैं, बीटा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, बहुत सारी और रेज भी होती हैं। उनमें भी क्वांटा इस्तेमाल करते हैं। लाइट के जो है वो क्वांटम को फोटोन कहते हैं। तो लाइट रेज का भी ऐसी ही है कि वो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। तो उसको बेस के ऊपर मैंने ये समझाने की कोशिश की। देखिए ये बकी हुई है। आदमी ने जो है ना अपने आप को चिमटा लिया है इसके साथ। देखिए इसने बाजू साइड पे हटाए ताकि स्कैपुला पीछे हो जाए, और ये चिमट गया है बिल्कुल बुरी तरीके से इसके साथ। जितना फासला रखेगा फिल्म से, चिमट के रखेगा एज क्लोज टू द फिल्म, वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। स्टर्नम है मिसाल के तौर पे, अगर वो कैल्सीफाई हुआ है तो नज़र आ जाएगा। लंग्स हैं, हार्ट है, ये ज़्यादा नज़र आएंगे। डायफ्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। ये फिल्म जो होगी वो PAV हो। क्यों है PAV? कि सोर्स इस्तेमाल हो रही है यहाँ से, ये देखें सोर्स यहाँ से इस्तेमाल हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फिल्म है। PAV हो जाएगी, PAV। अब इसको उल्टा कर दें आप, इसी बंदे का ये फिल्म पीछे लगा दें, तो फिर क्या होगा? देखें इसमें ये नज़र आ रही है आपको PAV में, तो वो APV हो जाएगा। अगर इस फिल्म को मैंने लगाया पीछे तो APV हो जाएगा। सिटिंग इन द बेड था, ज़ाहिर है वो पेशेंट, मैंने पहले भी बताया कि आप कराते हैं तो या तो बेड पे होता है या ICU में होता है, HDU में होता है। अब इस एक्सरे में और इससे पहले वाले एक्सरे में डिफरेंस करना पड़ता है खुद फिजिशियन को। तो इस पर जो है ना, ये तकरीबन आप समझे 30 ईयर तक झगड़ा रहा है आपस में लोगों का, ये PAV हुए या APV है, इस पर झगड़ा रहा है, आपस में आर्गूमेंट हुआ है। तो अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी और WHO ने ये कहा है कि जो आदमी है रेडियोग्राफर, वो इस पर लिखे कि ये कौन सा व्यू है। यानी इतनी मुश्किल हो गई है कि वो लिखना पड़ रहा है इसको। तो वो पेन से लिख देता है कि ये PAV है, ये APV है, जो कुछ लिखना है वो यहाँ लिखिए, कोने में लिख दिए इसको। अब ये रूल बनाया है 2015 में उन्होंने आके, तो उसे पेन से लिखना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कानून तो बहुत अच्छा है, आपको पता है। तो एक दिन में 150 एक्सरे 200 वो करेगा तो कहाँ लिखेगा वो? इतना टाइम थोड़ी होता है इसके पास। हाँ, अलबत्ता वो इतना कर दे कि वो PAV सही तरह कर दे, तो फिर बड़ी मेहरबानी होगी इसकी। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर जो है ना, दोनों में डिफरेंस देने के लिए कि आप कैसे पकड़ेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ये प्रीडोमिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो व्यू जो है ना, ये जब इस्तेमाल आप करते हैं, जो भी कर रहे हैं, PA करें या AP को करें, तो प्रीडोमिनेंट आप कह देंगे PAV, तो बात समझ में आ जाएगी। या प्रीडोमिनेंट APV कर दें, आपका ख्याल है कि APV तो प्रीडोमिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बेहतर होगा ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। लेकिन इसको लिखना चाहिए था। हम कैसे पकड़ते हैं? अभी मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने ये बोला था कि इस आदमी को फिल्म को बिल्कुल चिपकानी पड़ेगी। सही है। सबसे पहले ये देखिए कि ये कार्डियक शैडो है, देखें, क्योंकि इसमें फैट होता है, मसल्स होते हैं, इसलिए ये ग्रेश वाइट है। ये है स्पाइन, ये देखें, इसमें एयर आपको मार्क नज़र आ रहे हैं। फिर ये नीचे गई है तो इसके एयर मार्किंग ख़त्म हो गई है। इसके अंदर जो इंटरवर्टिबल स्पेसिस है वो मास्क हो गई हैं, नज़र नहीं आ रही, साफ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। अगर डोमिनेंटली जो है ना आपको कार्डियक शैडो आपको वाज़ेह नज़र आता है, तो आपके ख्याल में ये PAV होना चाहिए। उसने मास्क किया है वर्टिबल स्पाइन को, क्योंकि उसकी इंटरवर्टिबल स्पेसिस नज़र नहीं आनी चाहिए। ये नज़र स्पाइन तो नज़र आएगी, दोनों में नज़र आएगी, और दूसरे को भी देखिएगा अभी। तो इसलिए जो है ना, इसको फ्रंटल प्रोजेक्शन के नाम से अमेरिकन कहते हैं। फ्रंटल प्रोजेक्शन जो होता है वो PAV होता है, APV होता है, फ्रंटल प्रोजेक्शन। अब PAV लिखेंगे तो डोमिनेंट कर दें इसको। फर्ज करेंगे आप दोनों में जो ख़वातीन हैं अभी देख रही हैं, उनमें आपस में आर्गूमेंट हो गया। वो कह रही है कि नहीं, ये मुझे तो स्पाइन ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही है,
और कार्डियक शैडो मास्क नज़र आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इंटरवर्टेबल स्पेसिस भी नज़र आनी चाहिए। चलो आप नहीं, आप इसमें आर्गूमेंट कर रहे हैं। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में नहीं, आप क्या करें, सुप्रा क्लैविकुलर फोसा को देखिए। ये देख रहे हैं आप सुप्रा क्लैविकुलर फोसा, ये जो वाइड अगर आपको नज़र आता है और 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो यहाँ से, तो इससे भी ज़्यादा है ये, तो 2.5 क्या 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, तो ये PAV होगा। और अगर ये नैरो हो जाए, छोटा हो जाए, 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो ये APV हो जाएगा, ये डेफिनेट हो जाएंगे, श्योर हो जाएगा। एक फ्रंटल प्रोजेक्शन है, यस, लेकिन डोमिनेंट जो व्यू है APV है। मिसाल के तौर पे ये अगले बार इससे इसको कंपेयर करें, इसको आप देखिए, ये देखिए इतना छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, ये स्मॉल हो गया है। अब इंट्रोवर्टेबल स्पेसिस को देखें आप, ये ऊपर से आई है, ये आई है, ये आई है, यहाँ पे आई है, ये आई है, क्योंकि कार्डियोमेगेली है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक्चुअल एक्सरे दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने निकाल के रखा था। मैंने कहा आपको ऑन लाइव दिखा दूँ मैं ज़रा। ये तो आपने देखा इसके अंदर, अब इसमें देखिए ज़रा, ये मेरे पास है, इसको देखते हैं इसमें क्या सूरत हाल बनती है। ये चाहिए, ठीक है ना। अब इसको आप देखें, इसको आप जब गौर से देखेंगे तो आप यहाँ देखें, इसमें देखें ज़रा, ये एक्चुअल जो है ना इल्यूमिनेटर पे एक्सरे लगाया हुआ है। ये इल्यूमिनेटर मेरे पास और मैंने लगाया है। इसके अंदर आप ये देखें कि आपको जो नज़र आ रहा है वो जो है ना, ये स्पाइन आपको नज़र आ रही है, साथ में जो है हार्ट का शेडो नज़र आ रहा है, और ये सुप्राक्लैविकुलर फोसा है, ये सुप्राक्लैविकुलर फोसा है। अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करते हैं भाई, इसको अगर मैं मैक्सिमाइज करूं तो कैसे करूं, आई डोंट नो अबाउट इट। इसको करके देखें, ये तो गायब हो गया। चलें, बहरहाल करने का ये था कि उससे मेरे पास एक्सरे मौजूद हैं इन लाइव, मैं बाद में इसको देखता हूँ, इसको निकाल लूँगा ना इसमें से, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास तकरीबन 70-80 एक्सरे हैं जो मैं दिखाना चाहता था, तो वो मैं देखूँगा उसको कैसे करते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन लेट्स सी दिस वन। यहाँ पे देखें सुप्राक्लैविकुलर फोसा जो है ना वो स्मॉल हो गया है, स्पाइन टेढ़ी हो गई है ये, और दोनों के जो है शेडो को बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको आप सेकंड पार्ट जो लेंगे वो ये, इसको ये डिसाइड करेगा कि प्रीडोमिनेंट जो है ये फ्रंटल प्रोजेक्शन है, AP प्रोजेक्शन है, ये आपको बताना है। AP को मजबूरन किया जाएगा, याद रखिएगा। असल में बहुत सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं हो सकते इसमें, इसलिए मजबूरन आपको जो है ना वो आपको एक्सरे जो करना होगा वो यही करना होगा, PAV। इस पर स्ट्रेस करता हूँ मैं हमेशा, और इसके पॉइंट्स भी बताता हूँ कि लोगों को भाई ये PAV लेके आओ। APV में मैं रिपोर्ट नहीं करता उसको कोई, इसलिए दोनों में डिफरेंस जो है ना वो स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है। स्टेप 1 में आप समझते हैं, आप नहीं बता सकते, स्टेप 2 पे जाइए। फिर इसमें और चीज़ें भी लिखी हैं कि इसमें जो है ना वो रिप्स जो होती हैं वो ज़्यादा ऑब्लिक होती हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेट वगैरह, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, इसको तो छोड़ दें आप। असल बात यह है कि स्टेप 1 अगर आप बिल्कुल क्लियर कट हैं बाद में तो छोड़ दें इसको ऊपर वाले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सुप्राक्लैविकुलर फोसा को देखें और बता दें कि ये फ्रंटल प्रोजेक्शन में है तो PAV है डोमिनेंट या APV है डोमिनेंट। ये वो एडोकोबेटिस है,
अब ये जो है ना उन्होंने डेकोबेटिस किया है इसको, AP डेकोबेटिस लेटा हुआ आदमी है उसको किया है लाइंग में। तो इसने डायफ्राम जो है उसने धक्का मारा है उसको, हार्ट को, ऐसा लगता है इलाज हो गया बहुत ज़्यादा, जबकि ये नॉर्मल है ये। अब ये देखेंगे इसके अंदर इंट्रावर्टेब्रल स्पेसिस देखिए ज़रा, बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही हैं। ये इस तरह किया गया है लिटल डेकोबेटिस को। अगर आप करेंगे डेकोबेटिस लिटल करेंगे, वो तो AP था, तो इस तरह का ही एक्सरे आएगा नजर। असल में प्लूरल डिफ्यूजन के लिए करते थे एक ज़माने में, जैसे ये ना लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये देखते थे कितनी कम हुई है ये आफ्टर 3 days ऑफ थेरेपी, 4 days ऑफ थेरेपी, या आपने पैरासेंटेसिस किया है तो ये कम हो जाएगा, इसका डायमीटर, इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। आजकल जो CT करते हैं इसमें ये नहीं करते। वाई इंसिस्टिंग ऑन PA व्यू? बिकॉज इट विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द फिजिशियन, इज द फिजिशियन व्यू, नॉट द सर्जन, फॉर द सर्जन। सर्जन व्यू जो होता है AP व्यू होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि करेक्ट व्यू आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिपोर्ट करें AP व्यू को, अदरवाइज वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। फिल्म का साइज़ जो होता है एडिक्वेट होना चाहिए, जितना बड़ा साइज़ की फिल्म अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगी उतना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा आपको। ये रिक्वायरमेंट लाजमी है। कंसेंट शुड बी टेकन, पेशेंट से कंसेंट ले लें कि भाई ये मुझे काम करना है, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ लेडीज़ जो होती हैं कपड़े नहीं उतारती हैं। अगर रेडियोग्राफर्स हैं लेडीज़ और आपके पास रूम सेपरेट है उनके लिए, कोई कैमरा नहीं है, उनको बता दें, देख लें अच्छी तरह से, चेक करवा दें। कोई कैमरा वैमरा नहीं है कहीं पे फिट हो, अंदर से लॉक करें और उसको नेकेट करके करेंगे तो अच्छा आपको मिलेगा, प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे होता नहीं है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे, तो कमीज़ पहने रहती हैं वो, और चीज़ें इसमें से जो है ना ज़ाहिर है वो बहुत सारी पहने होती, उतार ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट प्रिवेसी इज नीडेड। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए है कि आपके पास जो एक्सेल रेडिएशन है उसकी जो है वो पॉइजनिंग ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि वो आदमी को कपड़े उतार देने होते हैं, पूरा बनियान वनियान सब उतारनी पड़ती है। फीमेल पेशेंट शुड बी रेडियोग्राफ बाय फीमेल टेक्नीशियंस इन द वर्ल्ड। होल वर्ल्ड में यही रूल है जो इस्तेमाल हम करते हैं। रिक्वायरमेंट्स हम जब करते हैं आगे, इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये आदमी S+S+S, ये स्टेट है, ये स्टैंडिंग में है। एस फॉर स्टिल, स्टिल का मतलब होता है डीपली इंस्पायर करेगा तो लंग में एयर जाएगी, जब एयर जाएगी लंग में एक्सपैंड होगा और वो कंट्रास्ट देगा क्योंकि एयर होती है ब्लैक। और होल्ड द ब्रेथ प्रॉपरली, वो एक्सपायर ना करे, क्योंकि लंग के अंदर जो होती है वो क्या होते हैं, एल्वुलर स्पेसिस होती है, एयर और उसके साथ उसकी ब्लड सप्लाई होती है, बस 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपने नहीं किया स्टिल उसको तो वो मास्क हो जाएगा। लंग की ज़रा भी चीज़ मास्क हो गई तो वो फिर क्या होगी, लिटेंट हो जाएगी, नज़र से उजल हो जाएगी। इसलिए ये 3 चीज़ें तो लाजमी चाहिए, स्टेट S+S+S, स्टेट होना चाहिए, स्टैंडिंग है, स्टिल। ये कैसे पता लगाएंगे, यह भी आपको बता देते हैं। एस फॉर स्टिल, एक्सपोजर ऑफ द फिल्म सही होना चाहिए, यानी आपने जो फिल्म की पावर है 65 जो है ना आपको इस्तेमाल करनी किलोवाट, यानी PA व्यू के लिए। और अगर आप बोन का एक्सरे करना चाह रहे थे तो आपको 72-75 पे करना होता। अगर आप 72 पे करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, लंग ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, हार्ट ज़्यादा वाइट हो जाएगा, तो आपकी जो ओपेसिटी है वो क्या होगी, मास्क हो जाएगी। लंग की ओपेसिटीज जो होती हैं वो मास्क हो जाती हैं और फिर आप नहीं पकड़ सकते उसको। आपको 65 के अंडर, 62 to 65 के दौरान एक्सपोजर देना होता है। अब क्या होता है आपके JPMC में कि वो एक ही पे कर रहा होता है 70-72, इसलिए फिल्म ज़्यादा ब्लैक हो जाती है कभी उससे, कभी बिल्कुल ही जब लाइट यानी उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होता है, एक्सपोजर कम हो जाता है तो डिम हो जाता है एक्सरे। तो क्वालिटी ऑफ द फिल्म अच्छी होनी चाहिए, यानी उसको बीच में खड़ा रहना चाहिए था, और क्वालिटी उसकी जो है ना उसमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं होने चाहिए जो कि लंग फील्ड के अंदर आ रहे हों। अगर कोई आर्टिफैक्ट आ गया तो वो मास्क कर देगा, कंट्रास्ट दे देगा, उसके साथ जो ओपेसिटी, एक्चुअल ओपेसिटी है उसको मास्क कर देगा।
देखिए कैसे निकालते हैं, S प्लस एस प्लस एस। ये जो है ना यहाँ पे आप जो है ना इस तरह निकालते हैं इसको। ये जो है ना मेरे इसको देखिएगा, ये क्लेविकल का अपर एंड है, ठीक है जी। इस पर एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन। और एक जो है ना आप पीछे जो है ना ये देखें स्पाइनस प्रोसेसेस है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन इमेजिनरी ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें। आगे दो लाइनें ये हो गई। अब जो बीच वाली लाइन है उसको नीचे तक खींच दें। इस तरह से ये राइट जो हेमिथोरैक्स हो जाएगा, लेफ्ट हेमिथोरैक्स हो जाएगा। अब अगर आदमी सीधा खड़ा था तो ये स्पाइनस प्रोसेसेस जो हैं ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में आएंगी नीचे तक। और अगर ये टेढ़ा होगा तो इधर ये स्पेस जो होती है ज़्यादा हो जाएगी, एक तरफ कम हो जाएगी। अब इसको नापें, यहाँ से यहाँ तक मेजर करें। जहाँ पे जॉइंट है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, और यहाँ का स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक नापें और यहाँ से यहाँ तक नापें। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इसने गर्दन को सीधा रखा हुआ है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। तो ये जो ना पेशेंट को स्टैंडिंग में है वो इस तरह मालूम चलाएंगे कि आपको रिप काउंटिंग आनी चाहिए, जो आती होगी आपको सिखाई होगी। ये हम पीछे से आगे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ये पोस्टीरियर प्रोजेक्शन है रिप्स की, इसको नहीं काउंट करते, ये सर्जरी वाले काउंट करते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमें जो एंटीरियरली देखें डिम शेडो है, बहुत हल्का शेडो होता है क्योंकि कार्टिलेजिनस होता है। ये पीछे वाला क्या होता है, ज़्यादा बुनी होता है तो वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहा है, उसको काउंट नहीं करते। तो इसको काउंट करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। ये चीज़ें जो है ना पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आपने लाइन ड्रॉ की, इसको मिलाया यहाँ से स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का अपर एंड से अपर एंड को एक लाइन इमेजिनरी यहाँ लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ हो गई लाइन। अब इसको आप देखें ये सीधी आ रही है नीचे, स्ट्रेट है, ये सही है। ये भी स्पेसेस इधर की और इधर की तकरीबन बराबर। अगर ये गर्दन इसने रोटेशन किया तो स्पेस क्या होगी, कम हो जाएगी। ये सीधा तो होगा लेकिन एक तरफ की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, एक तरफ की कम हो जाएगी। तो इसलिए रोटेट ना करे, वो गर्दन को भी रोटेट करेगा तो भी सारा का सारा ख़राब कर देगा। एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आपकी ज़ाया हो जाएगी। एस क्या था, स्ट्रेट। एस क्या था, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग को कैसे पता चलाएंगे, डोम ऑफ द डायफ्राम, राइट डोम ऑफ द डायफ्राम। फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। अगर स्टैंडिंग में पेशेंट था तो कम से कम जो है ना उसको जो है ना फिफ्थ रिब आपको नज़र आनी चाहिए। ये फिफ्थ है, इसमें सिक्स भी है, सेवन भी नज़र आ रही है। लिहाजा ये आदमी स्टैंडिंग में है। अगर ये लेटा हुआ आदमी होता तो ये फिफ्थ रिब आपको नज़र आती, यहाँ पे ये ऊपर चला जाता है। तो डिकोपेटस अगर होता लाइंग पोजीशन में तो ये ऊपर चला जाता है, डायफ्राम को डोम। इस तरह हम पता लगा लेते हैं कि ये जो है स्टैंडिंग में है। और डीपली इंस्पायर्ड स्टिल, एस फॉर स्टिल, एंड होल्ड द ब्रेथ प्रॉपरली। वो कैसे पता लगा है कि आपने देखें यहाँ पे ये आपको लंग के अंदर मार्किंग्स नज़र आ रही हैं, ये रे मार्किंग्स हैं, ये ब्लड सप्लाई है इसकी, ये अलग नज़र आ रही है और डॉक्टरिंग अलग नज़र आ रही है। अगर ये एक्सपायर हो गया करना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि ये ब्लर हो जाएंगी, ये मार्किंग नज़र नहीं आएंगी आपको। ये मार्किंग जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी लाइनें, ये गायब हो जाएंगी। इसका मतलब इस बंदे ने क्या किया कि खड़ा तो सही था, स्टैंडिंग सही थी, स्ट्रेट भी खड़ा था, लेकिन इंस्पायर किया, वो उधर गया, उसने कहा सांस को रोको, सांस गहरी लो और रोको। इसलिए कंट्रास्ट पैदा होगा तब आपको फाइंडिंग मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। अब अगर सांस लेना शुरू कर दिया उसने तो फिर क्या होगा कि ये मास्क हो जाएंगी, लाइंस साफ नज़र नहीं आएंगी। वह इतनी किनारा, यानी आप समझें कि इतनी डीपली आप इस एक्सरे को देख रहे हैं, इतना डीपली देखने की क्या ज़रूरत है भाई। इतने गौर से एक एक पॉइंट को आप निकाल के बता रहे हैं
और कह रहे हैं कि इससे पहले जो था वो मैंने जैसे बताया कि S+S+S लाजमी तौर पे आपको करना पड़ेगा। एक्सपोजर चलो ठीक है, चलो आपके हालात ख़राब है, आपने छोटी फिल्म ले ली, कोई बात नहीं, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आपने मास मिनिएचर रेडियोग्राफी कहलाती है, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। छोटी फिल्म इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल छोटी सी होती है, वो करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए। लेकिन उसमें आपको फाइंडिंग नहीं मिलेंगी इतनी, जितनी छोटी फिल्म होगी उतनी वो फाइंडिंग ज़ाय हो जाएंगी। क्वालिटी में ये है कि आर्टिफैक्ट नहीं होने चाहिए, यही मैंने बताया अभी। अब इसको दोबारा देखें, ऐसा है इसमें, ये ठीक है, स्ट्रेट स्टैंडिंग पे है, क्यों? क्योंकि डोम ऑफ द डायफ्राम जो है वो नीचे है। ये इसने डीपली इंस्पायर किया, जी हाँ, ये तो 7th और 8th रिप तक चला गया है। डीपली इंस्पायर करेगा तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। होल्ड की है ब्रेथ इसने, यस, वाई? इसलिए कि इसके अंदर जो रे मार्किंग्स हैं लंग की, जो ब्लड सप्लाई है वो अलग नज़र आ रही है, और इसके अंदर जो एलुलर शेडोज हैं ब्लैक, वो अलग नज़र आ रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी लाजमी है, PA व्यू करना लाजमी है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी लाजमी है। अगर आपने नहीं की तो आप मिस कर जाएंगे। याद रखिए कि आपने माइनर लीजन को मिस कर दिया, और वो होगा कॉक्स ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूमर होगा, आपने जो घर भेज दिया, तो आपने बहुत बड़ा जुर्म किया। इसलिए वो आदमी 3 महीने के अंदर जो है ना, या 4 महीने में बहुत बुरे हालात का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ खुद रीडिंग करें आप, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट कह दें वो तो माफ़ी मांग लेगा कि सॉरी, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस बंदे का तो बेड़ा गर्क कर दिया, जो आया था बेचारा बुखार में आया था, आपने एक्सरे किया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट चेक ही नहीं की, और उससे कहा नॉर्मल है, जाओ भाग जाओ, ठीक है। देखिए ये रोटेशन, गर्दन का रोटेशन है। अब आप कहेंगे कि ये ठुमका लगाएगा, जो होता है डांस कहलाता है जो, तो डांस करते हुए आदमी का तो एक्सरे हम करते ही नहीं है। वैसे गर्दन घुमाने वाली बात सही है, यानी ये वाली स्पेस जो है, जो मैंने कही थी आपको, स्टर्नल क्लॉकर जॉइंट से लेकर और बीच वाली लाइन, एक बड़ी हो जाएगी एक छोटी हो जाएगी, इसका मतलब रोटेशन हो गया है, इसने गर्दन को मोड़ा है। ये भी चेक अगर कर ले तो बड़ी मेहरबानी है। इसलिए एक चीज़ ज़ाय हो जाएगी, आप उसको नहीं बता सकते। पोजीशन ऑफ ट्रेकिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है एक्सरे का, वो ज़ाय हो जाएगा। इसी तरह रोटेशन, ये नॉर्मल था, इसमें देखें जिसने रोटेट किया, ये स्पेस जो है बढ़ गई, ये छोटी हो गई। लेकिन मेजर करें, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आदमी सीधा खड़ा है। ये इंस्पायर भी इसने सही किया है। देखें रिप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, स्टैंडिंग है, ऐसे डीपली इंस्पायर किया, होल्ड की ब्रेथ, क्यों? कि इसमें मार्किंग अलग नज़र आ रही है और एरोग्राम्स अलग नज़र आ रहे हैं। ये स्टैंडिंग के फीचर हैं जो सारे के सारे बता दिए थे कि पूरे के पूरे उन्होंने क्या किया है कि ये आपकी एनाटॉमी के लिए बताए हैं। ये क्लेविकल कहलाती है, बचकाना बात है बस, ठीक है। ये रिप काउंटिंग ऐसे होती है, 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रेजेंटेशन को जब आप देखेंगे, अगर ये रिकॉर्ड हो गई तो आप इसको दोबारा गौर से देखिएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कोई ना बता पाए, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, लेकिन ऐसे शायद ना बता पाए। ये डूम ऑफ द डायफ्राम है, ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, और निचला हिस्सा भी नज़र आना चाहिए, एटलीस्ट 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे तक भी नज़र आना चाहिए, और ऊपर भी नज़र आना चाहिए, तकरीबन 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर भी आपको नज़र आना चाहिए। यानी नेक का एरिया भी कवर होना चाहिए। ये नहीं है कि खाली ये से यहाँ से काट दिया उठा के, तो वो आपका फाइंडिंग मिस हो जाएगी। इसलिए कम से कम 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर नीचे भी आना चाहिए, और दाएं बाएं जो है कम से कम ये जगह खाली होनी चाहिए। लेकिन ये जगह स्पेस खाली है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसका मतलब आइडियल एक्सरे किया गया है। आगा खान में ऐसे ही करते हैं, लाकज नेशनल में आप जाके देखें कि वो एक्सरे को करते हैं, आपसे बोलते हैं बैठ जाएँ, जाने नहीं देगा वो। जब तक वो क्लियर नहीं कर लेगा कि ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं, तो फिर वो जाने देगा, वरना वो दूसरी दफ़ा एक्सरे करेगा, उसकी फिल्म ज़ाय होगी, आपको आपके पैसे तो नहीं लगेंगे ना। आपने जो दे दिए 1800 रुपये, तो वो नहीं मानेगा, वो दोबारा करेगा।
असल में वो करता ये है कि वो एक्सरे आजकल जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं टीवी के ऊपर, कंप्यूटराइज है, बाद में वो फिल्म पे चढ़ा देते हैं इसको, तो इनको पैसे इनके लगते ही नहीं है इसमें, जितनी दफ़ा चाहें कर लें। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ये स्टिल था जो मैंने आपको बताया, इंस्पायरेशन पे एक्सप्रेशन पे। ये इंस्पायर किया, ये एक्सप्रेशन में देखें इनकी, ये देखें एक्सपायर किया, डोम जो है वो ऊपर आ गए डायफ्राम के, ये कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या है। इसमें देखें कि एल्वियोलर शैडो बिल्कुल साफ है, इसने होल्ड की ब्रेथ, ये अलग अलग नज़र आ रही हैं लाइनें। एक्सपोजर जो है ना उसने वो किया जो करते हैं जना में, 72 किलो वाट पे कर दिया उठा, ये सारा डार्क हो गया, लेकिन बोन बिल्कुल वाइट हो गई, हार्ट वाइट हो गया, लंग काले हो गए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अंडर एक्सपोज अगर करेंगे 55 किलो वेट पर तो ये डिम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डिम हो जाएंगी जो आपको बड़े गौर से देख के पता लगानी होंगी, पता नहीं चल पाएगा। और अगर नॉर्मल आप करेंगे जो पहले दिखा चुका था, ये वाला, दिस इज आइडियल एक्सरे, हर चीज़ वाज़ेह है इसमें। ये जो है ना टेक्निक्स आनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द फिल्म है कि आप ये हार ही नहीं उतारा उन्होंने, तावीज़ था, तावीज़ भी नहीं उतारा। कि तावीज़ उतारेंगे तो पीर साहब नाराज़ हो जाएंगे और बलाएँ चिमट जाएंगी। हार भी इसलिए नहीं उतारा कि मेरे शौहर ने दिया, उसने कहा उतारोगी तो तुमको जो है ना तो फारिग कर दूंगा मैं, उसने कहा मैं ये नहीं उतारती। अब फ़र्ज़ कीजिए कि इसके अंदर लीजन है इधर, इसके पीछे, तो दायरा का ये तो आइसो हो गया, आइसोडेंस हो जाएगा शेडो, तो इसके पीछे जो शेडो नज़र नहीं आएगा, या इसके पीछे शेडो आपको नज़र नहीं आएगा, और आप इस फिल्म को नॉर्मल करार दे के इसकी छुट्टी कर देंगे। इसलिए हर चीज़ उतारनी पड़ती है, जितनी चीज़ें पहने हुए होते हैं तो वो सारे उतारनी पड़ती हैं। क्या चीज़ें देखते हैं नॉर्मल एक्सरे में? सबसे पहले बोनी स्केलेटन तो देखते हैं। देखिए अगर आप इस पर चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहले तो रिक्वायरमेंट पूरी करें, ये बताएं कि पीए व्यू है या एपी व्यू है फ्रंटल प्रोजेक्शन पे, या मजबूरन एक्सरे किया गया है लाइन डेकोबेटिस पे। पहले तो ये डिस्क्राइब यहाँ करें। फिर आप जब एक्सरे देखते हैं तो पहले आप बोनी स्केलेटन को देखते हैं, फिर सॉफ्ट टिश्यू देखते हैं, फिर टेकिया देखते हैं, फिर लंग फील्ड देखते हैं, फिर डोम्स और डायफ्राम देखते हैं। इसी तरतीब में देखें। मिडल मेरिस्टेनियम का अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है, वो देखें। और फिर जो है ना उसके बाद हाइलम को देखें, लेफ़्ट को अलग पढ़ें, राइट को अलग पढ़ें, दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था लेफ़्ट जो है ना एटीएम को अलग पढ़ें और राइट एटीएम को ईसीजी में अलग पढ़ें, तब समझ में आएगा, तब ये एक्सरे मुकम्मल होगा और कंक्लूजन होगा इसका कि इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगी। तो एडवाइस आप करेंगे कि इसे कहाँ जाना है, आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं या इसको रेफर करना चाहते हैं। ये देखें, इस पे अगर आप चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कैसे? पहली चीज़ जो है ना वो ये है, सबसे पहले ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जी हाँ हो गई। पीए व्यू है, जी हाँ इसने रिक्वायरमेंट पूरी की है। जी S+S+S किया है, जी हाँ S+S+S किया है। बोनी स्केलेटन आप देखें, क्लाविकल्स हैं इसके अंदर जो हैं, वो आपने खुद ही रिप्स काउंट की थी, रिप केज है और पीछे की स्पाइन नज़र आ रही है। सबसे पहले देखें आप ये। दूसरे में सॉफ्ट टिश्यूज़ देखें। सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं सराउंडिंग में होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू है, डायफ्राम सॉफ्ट टिश्यू है, नेक के अंदर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं साइडों की चीज़ें, या ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट टिश्यू शेडोज हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का इरादा हो तो अक्सर एक्सरे वो दिखा देते हैं, इसमें फाइंडिंग होती है सॉफ्ट टिश्यू में। यहाँ ये नॉर्मल होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे जो है ना, आपने सुना होगा सर्जिकल एम्फीसीमा, सबकुटेनियस एम्फीसीमा हो जाता है, तो वो इसी तरह पकड़ते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर लाइन यहाँ पे आ जाती है, एयर की लाइन आ जाती है, और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। अब ये बढ़ेगी और यहाँ आके पकड़ लिया उसने टेकिया को तो आदमी मर जाएगा। इसलिए वो एक्सरे करके चेक करते हैं इसको कि सर्जिकल एम्फीसीमा तो नहीं हो गया यहाँ पे, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सॉफ्ट टिश्यूज़। फिर क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ टेकिया, ये टेकिया है, इसके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है, ये बाद में बताया जाएगा। फिर लंग फील्ड पढ़ते हैं और उसमें उसका भी पढ़ने का मेथडोलॉजी है।
और फिर क्या करते हैं, जब ये ख़त्म कर लेते हैं तो डूम ऑफ द डायफ्राम राइट को पढ़ते हैं और लेफ़्ट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इसकी। फिर इसमें क्या करते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द मेडिस्टिनम जो है वो हार्ट एंड इट्स कवरिंग्स, ये आपको जो नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक, और अपर पार्ट ऑफ मेडिस्टिनम में क्या है कि ग्रेट वेसल्स हैं, एओर्टा है वगैरह वगैरह, वेन्स, एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा अपर पार्ट ऑफ द मिडिल मेडिस्टिनम है। फिर आप क्या देखते हैं, राइट हाइला को अलग पढ़ते हैं, लेफ्ट हाइला को अलग पढ़ते हैं, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे एक्सरे को तो आपको नॉलेज आएगी, डिजीज़ की नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, आपकी पल्मोनोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी। आप फिजिशियन अगर बनना चाहते हैं इंटर्निस्ट तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे बहुत, और नहीं बनना चाहते तो आपकी मर्जी है। ये जो है ना इस तरतीब में आप पढ़ लें अच्छी बात है। अब वो जो ना जो इंटरनेट पे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, डॉक्टर SABCDE, ठीक है ना, DRSABCDE, D फॉर डिटेल वो रिक्वायरमेंट्स हैं, R फॉर राइट इमेज, रोटेशन, इंस्पिरेशन वगैरह, S फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स है, A फॉर एयरवेज एंड मेडिस्टिनम है, B फॉर ब्रीदिंग है, C फॉर सर्कुलेशन है, D फॉर डायफ्राम है, और E फॉर एक्स्ट्रास हैं जो कि इसमें नज़र आ रहे होते हैं, कैथेटर वगैरह, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं तो इसको फॉलो करता। अब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ 2009 से। आई वॉज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द डाउ मेडिकल कॉलेज बिकॉज ऑफ रेडियोलॉजी। लोग मुझे रेडियोलॉजिस्ट समझते थे, और मेरे जो सुपरवाइजर है उसने ही सेड दैट व्हाई आर डूइंग FCPS इन इंटरनल मेडिसिन, व्हाई नॉट इन व्हाट अबाउट रेडियोलॉजी। फिर उसने सोचा, कहा कि व्हाट अबाउट पल्मोनोलॉजी, तो उसमें चले जाओ। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, अगर मैंने पढ़ा दिया तो कुछ जुर्म तो नहीं किया ना भाई। वो कहने लगे आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट में, कि वो जो है वो आपको रेडियोलॉजिस्ट बना दिया इन्होंने। वो एक्सरे लाद के देते थे अपने घरों से और मुझसे कहते थे आप रिपोर्ट कर दें इसको। आई एम नॉट अ रेडियोलॉजिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल जो है ना वो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। मुझे नहीं रेडियोलॉजिस्ट बनना है भाई, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर आप इस पे चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, इस पे चलेंगे तो फिर आपको फिर ये D क्या होता है, फिर R, फिर वो आ जाएगा मेनोमिक, मिस्टेक हो जाएगी। ये इस सेशन का जो था, सेशन 1 का एंड है। ये जो है हमने रिकॉर्ड किया है इसको, अगर ये हो गया रिकॉर्ड तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं खुद बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो अब इसके बाद सेशन इसका आएगा 2, वो रिकॉर्डेड होगा। सेशन 3 भी रिकॉर्डेड होगा। सेशन 4 एंड 5 जो होगा वो इंटरेक्टिव होगा। फिर इसी तरीके से आगे चलेगा ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हम आगे जाएं तो पल्मोनोलॉजी में आपको बताएं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कैसे रीड करते हैं, और फिर ABGs पढ़ना सिखाएं पहले तो, फिर उसके बाद फिर आपको डिजीज़ पढ़ाएं। जब आप चारों को जमा करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। पल्मोनोलॉजी तो बहुत आसान है। आई थिंक कि ये जो है ना जो बातचीत की है मैंने अभी तक, मैंने कोशिश की है इसको बहुत मुख्तसर रखूँ। हिफ्ज़ा एंड सैयदा कौसर आर अटेंडिंग आउट ऑफ 700 to 800 पीपल। तो सैयदा कौसर एंड हिफ्ज़ा इरशाद, कंग्रेचुलेशंस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस अराइज होंगे, बिल्कुल होंगे अराइज, तो वो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ अगर अभी तक जो है ना प्रॉब्लमेटिकल है कोई चीज़ तो। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा, वरना मैं FAQs कर दूंगा इसके ऊपर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आज भेजा भी है, वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस के FAQs भेजे हैं आपको। तो अब जो है ना इसको हम स्टॉप करेंगे, तो ताकि ये देखेंगे कि भाई ये रिकॉर्ड हुआ है या ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे सेशंस आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, उसको आप गौर से देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं इसको बंद करता हूँ।